أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میں بیان فرمایا. ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد. آگے والی آیات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر میں بھیجا تھا. حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت ہود ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت لوط ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد کے اندر میں حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، اور ان کی اولاد جن کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو بھیجا. ثم بعثنا من بعدہم ان کے بعد، یعنی ان انبیاء علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون وملئہ بآیاتنا، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف، یا فرعون کے سرداروں کی طرف، یا فرعون کے ماننے والوں کی طرف ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا. بآیاتنا، ہماری آیاتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کو لے کر، ہمارے معجزات کو لے کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے تھے، اور یہ 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائمی معجزے تھے. جب تک دنیا کے اندر میں باقی رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں معجزے باقی رہے. ایک تو لاٹھی کو ڈالنا اور لاٹھی کا اژدہا بن جانا، سانپ بن جانا، اور ہاتھ کو بغل کے اندر میں ڈالنا اور جس کی وجہ سے وہ چمکتا ہوا روشن بن جائے. یہ 2 معجزے تھے، اور ہر معجزہ
नबी की नबूवत जब तक बाकी रहती है वहाँ तक माजिज़ा बाकी रहता है। हमारे और आपके आका और सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बना करके भेजा तमाम दुनिया वालों के लिए, इंसानों के लिए, जिन्नातों के लिए, और ज़मीन के हर खित्ते पर अगर कोई आदमी बसता है उसके लिए भी अल्लाह ने उनको नबी बनाया और क़यामत तक के लिए नबी बनाया। आपकी नबूवत क़यामत तक बाकी रहेगी तो आपका मौजिज़ा ये कुरान पाक की शक्ल के अंदर में जो है ये क़यामत तक बाकी रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू के अंदर में हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को 2 मौजिज़े अता फरमाए थे। तो फ़िरौन के दरबार के अंदर में ये दोनों हाजिर हुए। सूरह आराफ के अंदर में भी इससे अगला सारा किस्सा लिखा हुआ है। यहाँ जो आयत ज़िक्र की गई है इसी के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना है कि हमारे मौजिज़ात को लेकर मूसा और हारून फ़िरौन के दरबार में पहुँचे, दरबारियों के पास में पहुँचे। फस्तकबरू, तो उन्होंने तकब्बुर किया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मानने से इनकार किया। और ये जो 2 मौजिज़े थे इन मौजिज़ों को उन लोगों ने जादू करार दिया कि ये कोई मौजिज़ा नहीं है, ये अल्लाह की निशानी नहीं है, ये तो जादू है। वकानू कौमम मुजरिमीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये लोग हकीकत में गुनहगार ही थे। मूसा अलैहिस्सलाम के और हारून अलैहिस्सलाम के नबी बनकर उनके पास जाने से पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा को और हारून को हक़ लेकर के भेजा था। ये हक़ लेकर के जब मूसा और हारून फ़िरौन के पास में गए तो इसी को जादू बना दिया। आम तौर पर जो बात समझ में न आवे उसको लोग जादू कह देते हैं कि ये जादू है। फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना, सो जब उनके पास में हक़ आया हमारे पास से, हमारी तरफ से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इन मौजिज़ात को ले करके फ़िरौन के पास में जाना। क़ालू, फ़िरौन और उसके दरबारी कहने लगे, इन्न हादा लसिहरुम मुबीन, बेशक ये तो अलबत्ता ज़रूर खुला हुआ जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों मौजिज़े पेश किए। लाठी डाली, अज़दहा बन गया, और बगल के अंदर में हाथ डाला, चमकता हुआ हो गया। फिर दोबारा हाथ डाला तो जैसा था वैसा हो गया। लाठी को पकड़ा तो फिर लाठी बन गई, अज़दहा बन गई, ये वगैरह बतलाए। तो अक्ल में आने वाली बात नहीं थी, इसलिए कह दिया कि ये तो जादू है। अब ज़ाहिर बात है कि जब फ़िरौन ने इसको जादू समझा तो जादू का मुकाबला वो तो कर सकता नहीं था। या उसके जो दरबारी थे वो दरबारी भी जादू जानते नहीं थे। तो क़ाल मूसा अतक़ूलून लिल हक़्क़ि लम्मा जाअकुम, जब फ़िरौन ने कहा कि ये तो जादू है, उसी वक्त के अंदर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया। क़ाल मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अतक़ूलून लिल हक़्क़ि लम्मा जाअकुम, क्या तुम हक़ बात को जब तुम्हारे पास में आ गई तो तुम ये कहते हो, यानी जादू कहते हो। उसके बाद में फिर मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि ये जो हाथ चमकता हुआ हो गया, लाठी ज़मीन पर डाली सांप बन गया, फिर पकड़ी लाठी बन गई, असिहरुन हादा, ये कोई जादू है? मतलब ये है कि अगर ये जादू है तो तुम भी पेश करो, तुम भी अपने हाथ को बगल के अंदर में डालो, जादू सीखो, हाथ को चमकता हुआ कर दो। और अगर ये लाठी जो है ये मौजिज़ा नहीं है बल्कि जादू है तो तुम भी लाठी को ज़मीन के ऊपर में डालो और सांप बना दो, फिर पकड़ो और लाठी बना दो।
मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वला युफ्लिहु साहिरुन, जादूगर कभी भी कामयाब नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ने वला युफ्लिहु साहिरुन कह कर के फरमाया कि जो भी रहती दुनिया तक सिहर से अगर काम लेगा या जादू से अगर काम लेगा, जो भी हो, जिस शक्ल का भी हो, तो अल्लाह ताला उसको कामयाब करते नहीं हैं। उसके बाद में फिरौन और उसके दरबारियों ने कहा, कालू, कहने लगे, अजितना ए मूसा और ए हारून, तुम हमारे पास में इसलिए आए हो, लितलफितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, ताकि तुम दोनों मिलकर हमको हटा दो, हमको फेर दो, हमको दूर कर दो, अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, उस दीन से और उस मजहब से जिस दीन और मजहब पर हमने हमारे बाप दादाओं को पाया था। तुम्हारा मंशा और मकसद ये है कि अपने बाप दादाओं के दीन से तुम हमको हटा डालो। व तकून लकुमल किबरिया फिल अर्द, और तुम दोनों ये चाहते हो कि मुल्क के अंदर में हुकूमत तुम दोनों के लिए कायम हो जाए। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि फिरौन के दरबार में दावत और तबलीग के ज़रिया मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने तौहीद को पेश किया, और तौहीद भी ऐसे आदमी के सामने कि जो खुद खुदाई का दावा करता था। फिरौन ने खुदाई का दावा कर रखा था, उसके सामने अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई, अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात वगैरह बयान करना। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि फिरौन ने ये समझा कि ये मजहबी शक्ल में हमारे सामने कुछ बातों को बयान करके ये हुकूमत लेना चाहते हैं। फिरौन की जो हुकूमत थी, उस हुकूमत के ऊपर में ये कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये कोई नबी नहीं है या इनके पास में कोई माजिज़ात नहीं है, बल्कि हमारी हुकूमत को ये ख़त्म करना चाहते हैं और मजहबी शक्ल के अंदर में पेश करके हुकूमत को हासिल करना चाहते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ कुरान की फसाहत और बलागत के ज़रिया से कि दुनिया के अंदर में बहुत सी जगहों के अंदर में मजहब को पेश करके हुकूमत को हासिल किया जाता है, मजहब की आड़ के अंदर में कुर्सी को हासिल किया जाता है, और मजहब की आड़ के अंदर में इख्तिलाफ पैदा करके जो है अपना मंशा और मकसद हासिल किया जाता है। ये बहुत पुरानी चीज़ है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बातें हैं ये। व तकून लकुमल किबरिया फिल अर्दी, और तुम ये चाहते हो कि हुकूमत ज़मीन के अंदर में तुम दोनों के लिए हो जाए। वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, फिरौन ने और दरबारियों ने कहा कि हम तुम्हारी बात को मानने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे ऊपर में ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो ये तो पहली मरतबा जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत और तबलीग के ज़रिया से फिरौन के सामने बातें पेश की, तो यहाँ तक बातचीत हुई। अब चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम के माजिज़ात को फिरौन और उसके दरबारी जादू समझते थे, और उनके बस की बात तो थी नहीं कि जादूगर का मुकाबला करे, तो फिरौन ने हुक्म दिया कि मुल्क मिस्र में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर में जितने भी जादू के जानने वाले हैं और बड़े से बड़े माहिरीन जादू के जानने वाले, उनको जमा किया जाए और फिर इनका मुकाबला किया जाए। वक़ाल फ़िरऔन, और फिरौन ने कहा, इतूनी बिकुल्लि साहिरिन आलिम, मेरे पास हर बड़े से बड़े जानने वाले जादूगर को ले आओ। इतूनी बि कुल्लि साहिरिन आलिमिन, हर बड़े से बड़े जादूगर जानने वाले जादूगर को मेरे पास में ले आओ। मुल्क मिस्र से भी जादूगरों को जमा किया गया, और दुनिया के अंदर में जहाँ कहीं भी लोग जादू के जानने वाले थे उनको भी जमा किया गया, और एक दिन मुतय्यन किया गया कि मैदान के अंदर में दोनों का मुकाबला हो। एक तरफ मूसा हारून और दूसरी तरफ जादूगर, और फिरौन और उसके मानने वाले वगैरह जो है बीच के अंदर में मंजर देखें। तो इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में फरमाया, फलम्मा जाअ अस्सहरतु, सहरा
जादूगर। जब जादूगर आ पहुँचे, क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपना दाव पेश करो, अल्क़ू अपना दाव पेश करो, मा अंतुम मुल्क़ून जो कुछ भी तुमको दाव पेश करना हो। यहाँ पर यह तज़किरा फरमाया है, और सूरह आराफ के अंदर में और दूसरी जगहों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा तज़किरा फरमाया है कि जब जादूगर फ़िरौन के दरबार के अंदर में पहुँचे, जादूगरों ने कहा कि हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं जादू के ज़रिया से, लेकिन हमारे लिए कोई उजरत और कोई मेहनताना हमको मिलना चाहिए। क्या क्या दोगी हमको और क्या उजरत हमको मिलेगी अगर हम मुकाबला करें जादू का और जादूगर का? तो फ़िरौन ने कहा था कि मुकाबले के अंदर में जो तुमको बदला मिलना चाहिए तो तुम हमारे मुकर्रब हो, यानी तुमको हमारा दरबारी बना दिया जाएगा। हमारे दरबार के अंदर में तुमको एक दरबारी की हैसियत से रखा जाएगा। अब ये कुरान पाक की आयत के अंदर में गौर व फिक्र करो और दुनिया के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखो कि अगर हमारी फेवर में फैसला आ गया तो सीधा पार्लियामेंट के अंदर में उसको पहुंचा दिया जाता है। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में है। तो जादूगरों ने कहा कि हमको क्या मिलेगा, क्या उजरत मिलेगी? तो फ़िरौन ने कहा कि तुम हमारे दरबारी हो, बस तो मुकर्रब हो। ज़ाहिर बात है कि जो आदमी मुकर्रब होता है, पीए होता है और दरबारी होता है, तो वो अपना काम क्या बादशाह को और हाकिम को कहे बगैर टेलीफोन के ज़रिए से या कह करके अपने काम करवा लेता है। तो ये उजरत मुतय्यन की गई, एक बात। दूसरी बात जो यहाँ पर जिक्र नहीं की गई है, दूसरी जगहों के अंदर में अल्लाह ने जिक्र फरमाई है, वो ये है कि जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का थोड़ा सा इकराम और एहतराम करते हुए यूँ अर्ज़ किया कि तुम अपना दाव पेश करते हो या हम अपना दाव पेश करते हैं। ये थोड़ा सा इकराम था जादूगरों की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम अपना दाव पेश करो, जो कुछ भी तुम पेश करना चाहते हैं, फिर मैं अपना दाव पेश करूँगा। तो दोनों जगहों का माहसल और खुलासा ये निकला कि क़ाल लहुम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्क़ू अपना दाव पेश करो, मा अंतुम मुल्क़ून जो कुछ भी तुम अपना दाव पेश करना चाहते हो। फलम्मा अल्क़ौ, जब जादूगरों ने अपना दाव पेश किया, मुफस्सिरीन ने और उलमा ने लिखा है, मुख्तसर बात अर्ज़ कर दूं कि ये जादूगर जो फ़िरौन के दरबार के अंदर में आए थे, उनके पास में लकड़ियाँ थी लंबी सी और अंदर से खोखली थी, खाली थी, और उसके अंदर में पारा भरा हुआ था। और पारा एक ऐसी चीज़ है कि जब वो गर्म होता है तो वो हरकत करता है, और उस लकड़ी के पीछे छोटी छोटी रस्सियाँ बांधी हुई थी और दोनों तरफ से उसको पारे को बंद कर दिया गया था खोखली लकड़ियों के अंदर में। तो मिस्र की गर्मी उसके अंदर में उन्होंने अपनी लकड़ियों को डाला जो पीछे पीछे रस्सियाँ थी, और इन लोगों ने जो मजमा देखने वाला था उस देखने वाले मजमे के ऊपर में नज़रबंदी की। नज़रबंदी करने की वजह से उनको ये नज़र आया कि ये सांप छोटे छोटे पूरे मैदान के अंदर में चलते हैं। और उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पूरा मैदान छोटे 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 सांपों से भर गया था। और दूसरी जगहों के अंदर में जिक्र किया कि इन जादूगरों ने उस ज़माने के अंदर में जो बड़े से बड़ा जादू हो सकता था वो बड़ा सा बड़ा जादू उन्होंने पेश किया, और दुनिया के अंदर में इससे बड़ा कोई और जादू हो सकता नहीं था। फलम्मा अल्क़ौ, जब जादूगरों ने अपना दाव पेश किया, क़ाल मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा जिअतुम बिही अस्सिहरु, ये जो तुमने पेश किया हुआ है ये जादू है। मैंने जो हाथ का मुआजिज़ा पेश किया वो जादू नहीं था,
मैंने जो लाठी मारी और अजदहा बन गया, फिर पकड़ा और लाठी बन गई, वो जादू नहीं था, ये जादू है। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ जी तुम बिही, जो तुमने पेश किया है, अस्सिहरु, ये जादूगर है, ये जादू है। इन्नल्लाह सयुबतिलु, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अन करीब इसको ख़त्म कर देगा। सयुबतिलु, युबतिलु का माना है बातिल कर देना, ख़त्म कर देना। और सीन जब आता है, सीन ज़बर स, तो ये बहुत नज़दीक का और करीब का माना पैदा कर देता है। ये जो तुमने जादू पेश किया हुआ है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत करीब के अंदर में और बहुत जल्दी इसको भी ख़त्म कर देगा, इसको अल्लाह ताला बातिल कर देगा। और फरमाया कि इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल अल मुफसिदीन, ज़मीन पर जो फितना मचाता है, फसाद मचाता है, जादू के ज़रिया से काम लेता है, तो ऐसे मुफसिदीन का अमल अल्लाह तबारक व तआला बाकी नहीं रखता, उसको दुरुस्त नहीं रखता, अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देता है। दूसरी जगह के अंदर में भी है कि वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, जादूगर जो कुछ भी अपना जादू पेश करता है उसके अंदर में वो कामयाब नहीं होता। व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह तबारक व तआला अपने हक़ को साबित कर देगा, बिकलिमातिही, अपने कलिमात के ज़रिया से। वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे गुनहगार लोग इसको नापसंद समझे। अब ये यहाँ तक बात हुई। उसके बाद में एक तर्ज पहले भी बता चुका हूँ कि कुरान पाक कोई किस्सा कहानियाँ बयान करने की किताब नहीं है कि मुसलसल इसके बाद में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरीके से तरतीब के साथ में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिवाय सूरह यूसुफ के। सूरह यूसुफ के अंदर में तरतीब के साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया हुआ है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िक्र फरमाया। अच्छा, अब उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम अपना मौजिज़ा पेश करो। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाठी डाली और लाठी ये अजदहा बन जाती थी, बड़ा सांप बन जाती थी। तो जादूगरों ने जब देखा कि ये जो लाठी है और ये जो अजदहा है, ये ज़मीन पर मैदान के अंदर में जितने भी छोटे छोटे सांप थे, इन तमाम सांपों को निगलना शुरू कर दिया। इसको देख करके उसी वक्त के अंदर में जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की वजह, मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तकरीर नहीं की थी, बस वो जादूगरों ने जो छोटे छोटे सांप जादू से बना करके डाले हुए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाली और वो अजदहा बन गया और निगलना शुरू कर दिया। इतना देख करके जो भी जादूगर थे तमाम के तमाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। उस पर उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दो चीज़ें थी, दो चीज़ें, एक जादू था और दूसरा मौजिज़ा था। जादू के अंदर में चीज़ की हकीकत बदलती नहीं है, जादू के अंदर में जो चीज़ होती है उसकी हकीकत बदलती नहीं है, नज़रबंदी के ज़रिया से उसको ऐसा ही लगता है जैसा कि जादूगर चाहता है। जैसे स्कूल के अंदर में छोटे थे तब वो दाव दिखलाने वाले आते थे और डिब्बे के अंदर में से नोटें के नोटें निकालते थे, तो भाई डिब्बे में से इतनी ज़्यादा नोटें निकलती है तो फिर 2-2, 5-5 रुपया स्टूडेंट तलबा से लेकर के क्यों दाव बतलाते हैं। या ये बटाटा जो है वो नाक के ऊपर में रखते और बटाटा काटते तो ऐसा लगता है कि उसका नाक काटा जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये नज़रबंदी है। तो जादू के अंदर में चीज़ की हकीकत बदलती नहीं है और मौजिज़ा के अंदर में चीज़ की हकीकत बदल जाती है। लाठी जब अजदहा बना तो वाक़िअतन अजदहा बन गया, सअबान मुबीन, सअबान बड़ा अजदहा कहते हैं। और उलमा ने भी लिखा है और हकीकत हाल है कि जो अजदहा होता है, बड़ा सांप जो होता है, वो छोटे छोटे सांपों को निगल जाता है। यहाँ तक लिखा हुआ है कि ये सांप के अंडों में से जो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं
تو اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ اسی کو کھا جاتی ہے. جو بھاگ نکلا اور بس گیا نہیں تو اس کی ماں ہی اس کو کھا جاتی ہے. اسی لیے دنیا کے اندر میں ان کی نسل جو ہے وہ بھی کم ہے. اور ان کی نسل ایک حکمت اور مصلحت کی وجہ سے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ دنیا کے اوپر میں جو یہ زہریلے جو مادے ہوتے ہیں وغیرہ وہ چوس لیتے ہیں. جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ اس بڑے اژدہے نے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. اس لیے کہ بڑے سے بڑا جو جادو تھا وہ جاننے والے تھے. روئے زمین پر اور دنیا پر اس سے بڑا کوئی جادو ہو سکتا نہیں تھا. اور اس کے بعد میں یہ اژدہا بنا، اور اژدہا بن کر کے جب سانپوں کو نگلنے لگا تو وہ کہنے لگے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے. اس لیے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اس کے بعد میں دوسری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جادوگروں کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھ کر فرعون نے کہا کہ بہت جلدی تم ایمان لے آئے، کم از کم مجھے کہتے تو میں کہاں تم کو انکار کرتا، میری اجازت لیتے، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے. تو پھر دھمکایا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں تمہارا الٹا پاؤں اور الٹا ہاتھ کاٹوں گا اور سولی کے اوپر میں تم کو لٹکاؤں گا. لیکن جب یہ ایمانیات کو دیکھ چکے جادوگر تو ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تو فوراً کہنے لگے کہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاجِعُونَ. اگر تو مار ڈالے گا، سولی پہ چڑھا دے گا تو ہم ہمارے پروردگار کے پاس میں پہنچ جائیں گے، اس سے زیادہ تو کیا کر سکتا ہے. اور دوسری جگہوں کے اندر میں بھی ہے کہ جادوگروں نے فرعون کو حکم دے دیا کہ کر، جو کچھ بھی تو کرنا چاہتا ہے کر. اب اس کے بعد میں کچھ لوگ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میں فرمایا. فما آمن لموسیٰ، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے الا ذریۃ من قومہ، مگر اپنی قوم کے کچھ لڑکے، علی خوف من فرعون، فرعون سے ڈرتے وملئہم، اور فرعون کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے، ان یفتنہم، کہ کہیں ان کو اور آزمائش اور فتنے کے اندر میں نہ ڈال دے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین کے اندر میں اور ملک کے اندر میں بہت بڑا بنا ہوا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک فرعون اسراف اور فضول خرچی اور زیادتی کرنے والا تھا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا. اب یہ جب موسیٰ علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لائے تو فرعون نے اور اس کے درباریوں نے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب تمہاری مدد کرے گا. وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، اسی کے اوپر میں توکل کرو، اسی کے اوپر میں بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم اللہ کے فرما بردار بندے ہو. حالات تھے موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے ماننے والوں پر تو توکل علی اللہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلقین فرمائی. فقالو، یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. قرآن کی چھوٹی سی ایک بات بتا دوں، فصاحت اور بلاغت. فقالو علی اللہ توکلنا، یہ کہا، یہ نہیں کہا توکلنا علی اللہ. توکلنا علی اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. یہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. علی اللہ توکلنا کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اور اگر توکلنا علی اللہ کہتے تو اس کا ترجمہ اور معنی ہوتا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. تاکید یہ پیدا جو ہوئی ہے،
अलल्लाह तवक्कलना कहने की वजह से वो ताकीद तवक्कलना अलल्लाह कहने की वजह से वो पैदा नहीं होती। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, बारी ताला हमको ज़ालिमीन कौम के लिए तख्ते मश्क मत बनाना। ये फिरौन और उसके जो मानने वाले हैं हम पर जुल्म करें और हम उनका जुल्म सहते रहें और हम तुझ पर तवक्कुल, एतमाद और भरोसा करें, तो कब हम पर मदद आए कि हमको नजात और ज़रिया मिले। तो हमको जो है ज़ालिमीन कौम से हिफाजत करना। वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, और बारी ताला हमको नजात अता फरमा बिरहमतिका, अपनी रहमत के ज़रिया, अपनी रहमत के वास्ते से, मिनल कौमिल काफिरीन, काफिरीन कौम से, काफिरीन लोगों से। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया और दुआ की कबूलियत का ज़ुहूर 40 साल के बाद में हुआ। दुआ कबूल फरमाई, ये दुआ पहले दिन दुआ मांगी, दुआ तो कबूल, दुआ कबूल, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल, लेकिन उसका जो ज़ुहूर हुआ दुआ की कबूलियत का कि नजात मिले फिरौन से और नजात मिले ज़ालिमीन से, ये 40 साल के बाद में हुआ। ये पहले पारे के अंदर में भी है, दूसरे पारे के अंदर में भी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की इमारत बनाई, इमारत बन गई, तो इमारत बनने के बाद में दुआ मांगी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये दुआ मांगी। और एक दुआ मांगी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ये दुआ मांगी काबतुल्लाह की इमारत बन जाने के बाद कि बारी ताला अब एक नबी को भेज कि जो तेरी आयतों की तिलावत करके समझाए लोगों को और तज़किए नफ्स करे और तेरे अहकाम को बतलावे, ये दुआ मांगी। उलमा ने लिखा है कि 4000 साल के बाद, कितने साल के बाद? 4000 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की कबूलियत का ज़ुहूर फरमाया। काबतुल्लाह की इमारत बन गई, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल, चलो नबी भेजेंगे, नबी आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में, औलाद के अंदर में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए 4000 साल के बाद में आए। तो इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि आदमी दुआएं मांगता है, दुआएं मांगता है, और फिर जब कबूलियत का कोई ज़ुहूर नहीं होता तो दुआ मांगना छोड़ देता है। यहाँ तक उलमा किराम ने लिखा हुआ है कि जब अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद आने वाली होती है, इससे पहले पहले शैतान वर्गलाता है कि इतने ज़माने से तू दुआ मांगता है, कहाँ तेरी दुआ कबूल होती है? क्या वो भी कहता है कि हाँ बात सही है, इतने लंबे अरसे से दुआ मांगता हूँ, दुआ कबूल नहीं होती, तो दुआ मांगना बंद कर देता है। तो ये है नबी की दुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जद्द अमजद और अम्बिया अलैहिस्सलाम के सरदार वगैरह वगैरह, खलीलुल्लाह वगैरह वगैरह, दुआ का ज़ुहूर हुआ 4000 साल के बाद। वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन व औहैना इला मूसा व अखीही। अब यहाँ से बाकी रखते हैं, इसलिए कि दावत और तबलीग इसके बाद में मुखालफत और ज़्यादा बढ़ गई। एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिब्ती को मार दिया था और वहाँ से भाग गए थे। तो ये जो सारा जो किस्सा है वो आगे वाली आयत के अंदर में बाद में क्या क्या हालात आए और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म दिया, इसका तज़किरा आयत के अंदर में आगे वाली आयत में लिखा है। आइंदा इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे।